Welcome to the second lecture for A-Levels Accounting and second part of the topic Accounting Cycle. So in our first lecture we studied how the accounting cycle works, what are the components. So I'll just draw the accounting cycle here. At first comes our journal. So this is the accounting cycle we studied in our last lecture. That first of all we post the transactions into journal, then ledger accounts, then trial balance, and then financial statements. So in today's lecture we will be discussing how the ledger accounts work and how we will post our transactions into the ledger accounts, what is the format and what is the procedure. So I have some transactions here that I will use the journal of which for the example, and then we will post those transactions to the ledger accounts. So at first I will generate the example here for you. So this is the format we discussed in our first lecture. So let's get started with the transactions. First transaction is capital invested 200,000. So I'll just write it right away. Date we will assume first, and then write the transaction. Cash account debit. So cash account is debit and credit will be capital account. And now we will write the amount 200,000 on both debit and credit columns. And now we will write the narration. Let's use blue. Capital invested. So now that our first transaction is posted, we will go to the ledger accounts. So these are called T accounts because they look like a T. So I'll just simply draw them here. So now that we have drawn our T accounts, we will write the title on the top. So the transaction was cash account to capital account. So here we will write cash account and capital account. Okay, so यहाँ पे we will see that how that transactions are posted. So there are two concepts. One, first we will go through the bookish knowledge. If the T account is of, okay, wait, let me write it here. If it is an asset or expense, so when there is an increase we will show it on the debit side, and if there is a decrease we will show it on credit side, just as we discussed with the double entries. And same for capital, income and liability, when they increase on the credit side, when they decrease on the debit side. Here I would like to discuss a concept that my teacher taught me when I was learning accounting in the start. तो हमारे टीचर कहा करते थे, he was a very good sir and I owe my everything to him. तो उन्होंने हमें बताया कि it's a shortcut, आसान तरीका है जस्ट टू रिमेंबर कि यहाँ पे हमने जिस तरह ऊपर ट्रांजैक्शन की थी कैश और कैपिटल की, कैश हुआ था हमारा डेबिट, तो कैश अकाउंट में जब हम ट्रांजैक्शन को पोस्ट करेंगे तो दैट विल बी ऑन द डेबिट साइड. अब कैश डेबिट किससे हुआ था, इसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या हुआ, दैट वाज कैपिटल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल. और इसी तरीके से कैपिटल जो हुआ था, और यहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट को भी देखें तो एसेट है कैश, इंक्रीज़ हो रहा है डेबिट साइड पे आ गया, किससे इंक्रीज़ हो रहा है, कैपिटल से हो रहा है. तो
दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं, यू कैन यूज़ वट एवर यू वॉन्ट। इसी तरीके से फिर कैपिटल पे आ जाएगा। सो लेट्स नीट और थिंग्स अप हेयर। Okay, so now we will write our amount here, that is 200,000. Okay, so first transaction is posted. You can use a 1T account on a full page length, but I used 2. So for easy understanding, let's move to our second transaction. So the second transaction, we will do basically 3 to 4 types of transaction. One transaction on cash and one on credit, and the third repayment of credit transaction. So once we will the transaction, you know how to post them. Once we will learn the basic concept, then you can post any transaction. So second transaction that we are using is purchased goods on cash 25,000. So the date, let's assume it 2, and now we will use the purchases as debit and our cash account as on credit, and we will write the amount, that is 25,000 in both columns. Now we will write the narration and then close the transaction. Goods purchased on cash, or simply goods purchased, and simply we have closed the transactions. Now let's move to the ledger. Okay, so first of all हम इसे कैश में कर देंगे पोस्ट। यहाँ पे हमने देखा था जिस तरह के कैश हो रहा था क्रेडिट ड्यू टू परचेजेस for the amount of 25,000. So we will write here purchases. So now that we have posted in the purchases account, now we will name this account as purchases account. तो purchases हुई थी हमारी डेबिट ड्यू टू कैश, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अपना कैश, and the amount was 25,000. So now that this transaction is posted, we will move. So now if there's a sales transaction, so that will be cash to sales, and just like right here, you will make a sales account, and wait, let me so that will be a sales account, and it will be credited due to cash in cash, and this is the amount. So now we will work on a credit transaction. Okay, so that we will do of sales. तो ट्रांजैक्शन है कि sold goods to Mr. X 50,000 और 40,000. तो date 3. In this case, Mr. X is our debtor, so he is an asset. Accounts receivable, so he will be debited his account, and on credit side we will write sales account. In the debit and credit columns we will write our amount, that is 40,000. Then we will write the narration, goods sold on credit, and now we will close the transaction. So let's move, and sales was due to Mr. X, so on the credit side we are going to write Mr. X and his amount 40,000. Here we will make a Mr. X account, sales on debit, and the amount 40,000. Okay, so now we have posted this transaction, one of purchases, one of sales. So now it is the time to repay debts or collect account receivables. अच्छा, तो अब हम करेंगे एक रीपेमेंट की
ट्रांजैक्शन, सॉरी इस केस में हमारे पास खाली क्रेडिट सेल्स हैं, तो हम कलेक्शन करेंगे विद डिस्काउंट। ठीक है, इफ़ देर इज़ अ सिंपल कलेक्शन वी विल पोस्ट द डबल एंट्री कैश और बैंक टू मिस्टर एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी, डिस्काउंट भी है साथ, तो हम यहाँ पे करते हैं कि 15,000 हमने कैश रिसीव किया और 2,000 हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो यहाँ पे मैं अपने सर को अगेन कोट करूँगा कि वो कहा करते हैं कि हमारा जो कैश और हमारा डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड, बोथ they will always stick together like best friends. If cash is debited, discount will be debited. If this cash is credited, discount will be credited. So in this case हमारा कैश रिसीव हो रहा है तो कैश होगा डेबिट, ऑल्सो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया कैश और डिस्काउंट अलाउड दोनों। तो अब हमने जो हमारे थे मिस्टर एक्स, इन ये हमारा एसेट थे, तो अब ये डिक्रीज़ हो जाएंगे, तो इन्हें हम कर देते हैं क्रेडिट इनके अकाउंट को। अच्छा, अब हमने कैश कितना रिसीव किया था, 15,000, और डिस्काउंट कितना अलाउ किया था, 2,000। तो टोटल हमारा जो डेबिट साइड है दैट इज़ 17,000। जिस तरह हमारा डुअलिटी का कॉन्सेप्ट कहता है डेबिट एंड क्रेडिट विल हैव इक्वल इम्पैक्ट, तो यहाँ पे हम मिस्टर एक्स के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 17,000 के साथ। यहाँ पे हम अपनी नरेशन लिख देंगे दैट कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स। तो यहाँ पे हमने आके अपनी लिख ली है नरेशन, एंड नाउ वी विल क्लोज दिस ट्रांजैक्शन। अच्छा, तो अब हमारी ट्रांजैक्शन हो गई है क्लोज। अब हम इसे पोस्ट करेंगे लेजर में। तो यहाँ पे हमारा एक सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ा था कैश पे। ठीक है, कैश हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मिस्टर एक्स कितना रिसीव हुआ, 15,000। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे मिस्टर एक्स को हमने कर दिया क्रेडिट विद कैश 15,000 एंड डिस्काउंट अलाउड। अगर हम डिस्काउंट अलाउड या रिसीव ना भी लिखें तो हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि अगर वो हमारे डेटर्स के साथ है या क्रेडिटर्स के साथ है, लेकिन अभी स्टार्ट है तो हम अपनी सहूलत के लिए लिखेंगे। सेकेंडली हम यहाँ पे अपना दूसरा अकाउंट बना लेंगे डिस्काउंट का। अच्छा, तो हमने यहाँ पे अपना डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट बना दिया है, तो ये हमारा यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो इधर हम मिस्टर एक्स को कर देंगे डेबिट 2,000 के साथ। अच्छा, तो अब हमने अपनी ट्रांजैक्शंस कर दी हैं पोस्ट। अब हम इन अकाउंट्स को करेंगे क्लोज़। तो क्लोज़ करने के लिए हमारे पास एक और यहाँ पे मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि जब भी हमारे पास एसेट्स या एक्सपेंसेस होंगे तो नॉर्मली इनका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आता है क्रेडिट साइड पे। ठीक है, इसको हम CD लिख लेते हैं या BD हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है, CD क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस मैंने फ़िलहाल इसलिए यहाँ पे डिस्कस नहीं किए क्योंकि ओपनिंग बैलेंस हमारा था नहीं, ओपनिंग बैलेंस आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस ये है कि हमने अकाउंट क्लोज करना, आगे ट्रांसफ़र करना है, तो ऑब्वियसली यहाँ से हम सारे मामला ख़त्म करके आगे बढ़ेंगे। अच्छा, क्रेडिट साइड पर इसका क्लोजिंग बैलेंस आता है, लेकिन इस बैलेंस को हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस है। ठीक है, क्योंकि इस अकाउंट की जो नेचर है वो डेबिट है, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो डेबिट नेचर है, नेगेटिव होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। उस पर भी आता है हमारे पास इन केस हमने कैश एक बैंक यूज़ कर रहे हैं और हमारा जिस तरह बैंक्स में हम एक फैसिलिटी होती है ओवरड्राफ्ट की, तो जब ओवरड्राफ्ट चला जाता है तो हमारे बैंक अकाउंट का इस साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे आएगा तो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, यानी हम लोग नेगेटिव में जा रहे हैं। यानी एसेट और एक्सपेंस का जब भी साइड पे आएगा तो पॉजिटिव है। ठीक है, और हमारे पास जो बाकी तीन है इनकम, लाइबिलिटी और कैपिटल, इनका नॉर्मली जो क्लोजिंग बैलेंस आता है वो डेबिट साइड पे आता है और इसे हम डेबिट साइड पे इसका क्लोजिंग बैलेंस आता है और इसे हम बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक कंफ्यूजिंग बात है, लेकिन ये आगे जब हम अगले लेक्चर में आएंगे तो ये हमें क्लियर हो जाएगी
तो अब हम यहाँ पे अपने अकाउंट्स को क्लोज़ करना शुरू करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपना CD। ठीक है, CD हम यूज़ करते हैं क्लोजिंग बैलेंस के लिए, इसको हम कहते हैं कैरेट डाउन। ठीक है, कैरेट डाउन का ही है। तो अब हम यहाँ पे रखते हैं, इसका एक और भी है कि हम यहाँ पे इसको पहले टोटल कर लेते हैं। ये हमारे पास कितना है, 200,000 एंड 15,000, तो ये बन गया 215,000। अब हम लोग ये देखते हैं दोनों साइड्स हमने करनी है इक्वल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या अमाउंट लिखेंगे कि हमारे पास 215,000 टाइम 25,000 हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 190,000। इसका हमारा ये मतलब है कि हमारे पास इस वक्त जो कैश पड़ा हुआ है दैट इज़ 190,000 इन हैंड। ठीक है, जो इस वक्त हमारे पास कैश पड़ा है। अच्छा, ये यहाँ पे लाइन थोड़ी एक्स्ट्रा थी, जो इसका ओरिजिनल होगा वो यहाँ पे हम लोग लाइन अपनी क्लोज़ कर देंगे। और इसके लिए एक और चीज़ ये कि जब हम इसको क्लोज़ करेंगे तो यहाँ पे हम डबल लाइन से क्लोज़ करेंगे। अकाउंटिंग में डबल लाइन का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे मेरी कैलकुलेशन ख़त्म हो गई है। ठीक है, यहाँ से आगे मेरी कैलकुलेशन नहीं है फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस टास्क। इसी तरीके से यहाँ पे चले, यहाँ पे हम अपना एंड पे लिख लेते हैं 200,000। इसी तरीके से यहाँ पे भी डबल लाइन 200,000, और यहाँ पे हमारा CD कितना है 200,000। इसी तरीके से परचेजेस पे आ जाते हैं। परचेजेस पे भी हमारी सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है 25,000, इस साइड पे भी 25,000, तो यहाँ पे हमारा CD कितना आ जाएगा 25,000। इसी तरीके से यहाँ पे 40,000 और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस 40,000। अच्छा, फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमें देखने से अंदाज़ा है कि हमारी ये 40,000 वाली साइड हैवी है, तो हम यहाँ पे अपना लिख लेते हैं 40,000। यहाँ पे हमारा क्लोजिंग बैलेंस 40,000 में से 17,000 माइनस करके जो अमाउंट आएगी वो लिखेंगे, तो वो हमारे पास आती है 23,000। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे हम इसको क्लोज़ कर देते हैं 2,000 और यहाँ पे CD 2,000। तो ये हो गए हमारे सारे अकाउंट्स क्लोज़। अब इनको हमने फिर आगे ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट करना और सारा कुछ। सो दिस वाज द टुडेज़ लेक्चर। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कमेंट एंड आई विल होपफुली आंसर। तो ये हमारे पास थे सारे टी अकाउंट्स, इनको हम किस तरह बनाते हैं, क्या करते हैं। सो यू कैन रेफर टू द बुक्स, लिंक ऑफ विच इज़ मैंशनड इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ से आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस लें, क्योंकि ये सिर्फ एक दफ़ा समझने से नहीं आता, इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। सो आप उसके आई वुड सजेस्ट जो राइस की बुक है, लेट मी राइट इट है, जो हमारे पास यहाँ पे आपके पास कैफ 1 की बुक होगी राइस की, उसका जो चैप्टर 1 है उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें। ठीक है, सेकंड पे जो डेविड हॉपकिंस की बुक है, ठीक है, उसका आपके पास पहले 2 चैप्टर हैं, वहाँ से आपको प्रैक्टिस मटेरियल अच्छा मिल जाएगा। तो आप यहाँ से जाके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और अपनी ग्रिप इस चीज़ पे स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको लाइट समझ के आगे निकल जाते हैं, लेकिन हमारी अकाउंटिंग की बेसिक्स ही यही हैं। तो जब बेसिक्स वीक होती हैं फिर वो आगे जाके, क्योंकि आप अकाउंटिंग में कोई भी ट्रांजैक्शन कर लो, कुछ भी कर लो, उसमें आपका इन द एंड जो बात यानी शुरू होती है बेसिक्स, वो आपकी डबल एंट्री है। तो अगर आपकी डबल एंट्री, फिर उनकी लेजर में पोस्टिंग, फिर ट्रायल बैलेंस, जब ये सारी चीज़ें ख़राब होंगी तो आप फिर उसको अकाउंटिंग को इस तरीके से ग्रिप नहीं अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकोगे। तो आई वुड से कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। सो ये जो एक वीक है, सो ऑन नेक्स्ट मंडे, तो आज का लेक्चर थोड़ा लेट हो गया, सॉरी फॉर दैट। कल का जो अगले मंडे का लेक्चर, उसमें हम ट्रायल बैलेंस पे बात करेंगे। तो आई वुड लाइक कि आप लोग तब तक इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएं और बेहतर हो जाएं। तो इंशाल्लाह I will meet you next week with a new lecture. Thank you for watching and kindly support this channel.
ताकि एक अच्छे कॉज में हम लोग आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू।